ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 12 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟਨਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਅਮੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਈ ਵਨ ਪਾਰਟਨਰ ਫਰੋਮ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟਨਰ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨਸੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਜੋ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਦ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MCQ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੀਜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਜਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਇਫ ਐਗਰੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ 'ਚੋਂ MCQ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਵ ਐਗਰੀਡ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਅਤੇ B ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, PPSC ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਬਾਈ ਡਿਡਕਟਿੰਗ ਅ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਰੋਮ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੀਓ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਲੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਵ ਗੇਨਡ ਦੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਾਲੋ ਗੇਨ ਔਰ ਨਿਕਾਲੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ABC 3 ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1:1:1 1:1 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ C ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ, 3।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1+1+1 ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਏਗਾ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 5:4:3। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ। 5 + 4 9, 9 + 3 ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਗੇਨਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਗੇਨ ਔਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਔਰ ਗੇਨ ਨਿਕਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਗੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੇਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੇਨ ਔਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ABC। ओल्ड शेयर लिख लो पहला, तो सब तीनों एक एक शेयर लै रहे हैं तो 1/3 हो गया ए दा, 1/3 हो गया बी दा, 1/3 हो गया सी दा। डिनोमीनेटर दे विच टोटल लैना है, उपर ओदा इंडिविजुअल शेयर लैना है। डिनोमीनेटर दे विच टोटल, उपर ओदा इंडिविजुअल शेयर। डिनोमीनेटर दे विच टोटल शेयर ते उपर ओदा न्यूमीरेटर दे विच इंडिविजुअल शेयर। इदा ही न्यू रेशो निकाल लोगे। न्यू रेशो दे विच टोटल शेयर है 12, इंडिविजुअल शेयर है ए दा 5/12। इदा ही बी का टोटल शेयर है 12, इंडिविजुअल शेयर है वह 4/12। इदा ही 3C का 3/12। हुण मैं तुहानूं कहा जदों भी क्वेश्चन दे विच दस्सिया गया होवे सैक्रीफाइस निकालना है तो गेन निकालना है, तुसीं किहदा फॉर्मूला यूज़ करोगे, सैक्रीफाइसिंग रेशियो का। सैक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला की हुंदा है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, या फिर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो भी बोल सकते हो। तो ओल्ड के विचों जो तुसीं न्यू माइनस कर दोगे तुहाडे कोल की निकल के आएगा, सैक्रीफाइस या गेन। हुण इहनूं ना आपां एक प्लेन शीट के उत्ते करन दी कोशिश करते हैं जिहदे नाल तुहानूं LCM, मैं वैसे पहली क्लासिस दे विच LCM लैना सिखाया, फिर भी जिहड़े बच्चे नवे हैं जिन्होंने नहीं पता LCM किद्दां लैना है मैं दोबारा तो दस रही हाँ। ठीक है, आपां प्लेन शीट ते चलते हैं पहला तो। चलो ਹੁਣ देखो एक बार आप सारी चीज़ा नोट कर लीए की सीगा। ए दा सीगा 1/3 ओल्ड ते 5/12 न्यू। देखो ए दी निकालोगे 1/3 माइनस 5/12। हुण LCM लेना है, 3 और 12 का LCM ले लो। 3 के टेबल ते 1 ते, 3 के टेबल ते 4 ते 4 के टेबल ते 1 ते। 3 4 हो जाएगा 12, डिनोमीनेटर च आ जाएगा 12। हुण की करना है, तुसीं डिनोमीनेटर नूं इंडिविजुअल डिनोमीनेटर दे नाल डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा उन्होंने न्यूमीरेटर च मल्टीप्लाई करना है। दोबारा रिपीट कर रही हाँ, डिनोमीनेटर नूं इंडिविजुअल डिनोमीनेटर दे नाल डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो इंडिविजुअल न्यूमीरेटर दे नाल मल्टीप्लाई कर देना है। हुण देखो 3 नूं 12 नाल डिवाइड करके कितना आएगा 4, 4 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4। साइन जो होएगा वही लोगे, माइनस साइन है माइनस। 12 नूं 12 नाल डिवाइड किया कितना आएगा 1, 1 नूं न्यूमीरेटर नाल मतलब कि 5 नाल मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 5। हुण तुसीं 4 दे विचों 5 माइनस करोगे थोड़े को कितना आऊगा -1 आऊगा, -1/12 आ जाऊगा। मैं तुहानूं दस्सिया कि जिहदा माइनस दे विच शेयर आ रहा है वो की करेगा, गेन करेगा। ठीक है, ए की कर रहा है, गेन कर रहा है, तो एदा गेन आ गया। एक बार आपां देख लैंदे आ। देखो ए दा आ गया -12 1/12। हुण बी दा इत्थे सॉल्व कर लैंदे आ। बी दा शेयर कितना है 1/3 माइनस करना है 4/12। LCM लोगे तुहाडे कोल LCM सेम आ जाएगा 12। 12 नूं 3 नाल करोगे डिवाइड, तुहाडे को कितना आएगा 4, 4 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4। 12 नूं 12 नाल डिवाइड करोगे आएगा 1, 1 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4, तो 0 आ जाएगा। 0/12 तो 0 ही हो जाएगा। जे किसी पार्टनर का 0 आ रहा है यदा मतलब कि नो गेन ते नो सैक्रीफाइस।
ठीक है। इदा ही आप सी का निकालना है, मैं क्लीन कर दिनी एक बारी। सी का निकाल लवांगे ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना है 1/3 माइनस न्यू 3/12, एलसीएम सेम आ जाएगा 12, 12 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ डिवाइड आया 4, 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया आया 4, 12 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ डिवाइड किया आया 1, 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया आया 3, 4 ਚੋਂ 3 गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया 1/12। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਗੇਨ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਤਲਬ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਜ਼ੀਰੋ ਮਤਲਬ ਨੋ ਗੇਨ ਨੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਔਰ ਗੇਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ। ठीक है, नैक्सट ते चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन एक बार कर लेंगे। PQR वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसिस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। कहते PQR है जो प्रॉफिट एंड लॉसिस नूं शेयर कर रहा है 3:2:1 दे विच। इट मीनस ये उन्हां दे की है ओल्ड रेशियो तो हुण उन्होंने डिसाइड किया है, दे डिसाइडिड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसिस इन द रेशो ऑफ 2:2:1। ये होगी उन्हां दी न्यू रेशियो। कहते इंडिकेट करो किहड़ा पार्टनर सैक्रीफाइस कर रहा है, किहड़ा पार्टनर गेन कर रहा है। तो मैं तुहानूं लास्ट क्वेश्चन च दस्सिया सैक्रीफाइस और गेन निकालने वास्ते तुसीं किस रेशियो का इस्तेमाल करोगे, सैक्रीफाइसिंग रेशियो। सैक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हुण ओल्ड शेयर देखो 3:2:1, पी का कितना हो जाएगा 3/6, ठीक है। क्यू का कितना हो जाएगा 2/6, आर का कितना हो जाएगा 1/6। इदा ही न्यू शेयर लिख लोगे। न्यू शेयर है 2:2:1, 2/5, 2/5 और 1/5। हुण ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पी का 3/6 के विचों माइनस करोगे 2/5। जो तुसीं इहदा एलसीएम लोगे थोड़े को आएगा 30। एलसीएम चाहे तो लैके देख लो। 6 और 5 का एलसीएम लो। 6 के टेबल ते 1 ते 5 नहीं जाता, 5 के टेबल ते 1 ते ये खत्म, 6 5 हो गया 30। फिर इंडिविजुअल डिनोमीनेटर नाल करो डिवाइड, 30 नूं 6 नाल डिवाइड करोगे कितना आएगा 5, 5 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करोगे आएगा 15। इदा ही 30 नूं 3 5 दे नाल करोगे डिवाइड, ये आएगा 6, 6 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे आएगा 12, 15 चो 12 जाओगे 3/30 आएगा। ये तुहाडा आएगा पॉजिटिव दे विच, पॉजिटिव जा रहा तो वो की करूँगा सैक्रीफाइस। पी की करेगा सैक्रीफाइस करेगा 3/10 नाल। हुण इत्थे ध्यान रखना कि अपने ऑप्शनस चैक कर लेना, ऑप्शनस दे विच डिनोमीनेटर्स की वैल्यू की दिती हुई है। जे तो कटिंग करके आ रहा है तो कटिंग करके भी तुसीं अपने आंसर नूं चैक करोगे। जिद्दां हुण मैं इत्थे 3/30 लिखिया तो ये 3/10 1/10 भी हुंदा है, तो तुसीं इदां चैक करना अपने ऑप्शनस नूं। पी क्यू दा निकालोगे सेम, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तुहाडे कोल आएगा -2/30। हुण माइनस आ रहा है, इसदा मतलब कि है गेन कर रहा है। इदा ही आर का निकाल लोगे, -1/30 आ रहा है, भी गेन कर रहा है। तो आंसर क्यों हो जाएगा, पी है सैक्रीफाइस 3/10। पी पॉजिटिव है, उन्होंने सैक्रीफाइस करना पाया 3/10। तो क्यू और आर नूं गेन किया है 2 और 1। देखो इत्थे 30 आना, मैं ना गलती नाल 10 लिखता, इत्थे 30 है। नैक्सट क्वेश्चन एक बार देख लेने आ। इदा के क्वेश्चनस भी पूछे जा सकते हैं। हर तरीके का मैं मैथड अप्लाई करके तुहानूं दिखा रही हाँ कि क्वेश्चन मोल्ड करके किद्दां पूछे जा सकते हैं। XYZ है पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसिस इज टू 5:3:2। कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ Z हैज़ गेन 1/10। ठीक है, हुण तुहानूं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिती, हुण तुहानूं क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। ओल्ड दिती हुई है तुहानूं 5:3:2 तो उन्होंने सीधा Z का शेयर देता है कि Z ने इन्ना गेन किया 1/10 और द शेयर सैक्रीफाइस इक्वली X एंड Y। तो जोड़ा शेयर उन्हें गेन किया है ना, वो सैक्रीफाइस होया इक्वल X एंड Y। हम देखो X की रेशो कितनी है, ओल्ड रेशो 5/10। 5/10 कितना आया 5 + 3 + 2 करोगे 5/10 आएगा। तो 5/10 आया तो X का सैक्रीफाइस कितना निकालोगे, हुण Z ने गेन किया है वो चों सैक्रीफाइस निकालोगे। 1/10 गेन किया है, इक्वल किया है, ये चीज़ याद रखना, इक्वल सैक्रीफाइस कर रहे हैं। 1/10 शेयर सैक्रीफाइस इक्वली X एंड Y। X और Y का इक्वल सैक्रीफाइस होया 1/10 दे विच। तां हुण
1/10 ਜਿਹੜਾ Z ने गेन किया है ਉਹਦਾ 1/2 कर दोगे। 1/2 क्यों करोगे? क्योंकि इक्वल है, दो पार्टनर है, X और Y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है, 1:1 हो जाएगा। तो टोटल शेयर हो गया 2 नीचे आ जाएगा 1X का इंडिविजुअल। मल्टीप्लाई करना है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ माइनस प्लस नहीं करना, याद रखना सैक्रीफाइस जो निकालना है तो गेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ सैक्रीफाइस होएगा ਉਹਨੂੰ मल्टीप्लाई करना है। 1/10 ਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1/20। ਹੁਣ X ਦਾ न्यू शेयर कितना निकालोगे? सानू ये पता है सैक्रीफाइसिंग रेशो कितना निकलती है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तुसी इस फॉर्मूले नू रीअरेंज करो। हुण आपां न्यू शेयर निकालना है, न्यू शेयर नू लै जाओ लैफ्ट हैंड साइड ते, ये आ जाएगा न्यू शेयर, नैगेटिव दा सी इत्थे आके पॉजिटिव हो जाएगा। सैक्रीफाइस इधर पॉजिटिव सी, ये राइट हैंड साइड आके नैगेटिव हो जाएगा। इट मीनस जदों तुसी ओल्ड शेयर दे विचों सैक्रीफाइस माइनस कर दोगे तुहाडे कोल न्यू शेयर आ जाएगा। हुण ओल्ड शेयर कितना सीगा? 5/10, 5/10 आ गया। सैक्रीफाइस निकाल लिया आप 1/20 माइनस करो 20 LCM दे विच आ गया। उदा ही सेम प्रोसीजर 20 नू 10 नाल किता डिवाइड आया 2 नू 5 नाल मल्टीप्लाई किता आया 10, 20 नू 20 नाल डिवाइड किता आया 1 नू 1 नाल मल्टीप्लाई किता आया 1, 10 चो 1 गए 9 X की न्यू रेशो हो जाएगी। ठीक है, आई होप तुहानू इत्थे क्लीयर है कि जदों सानू हुण इत्थे सानू न्यू रेशो नहीं गिवन सी, आपां न्यू रेशो निकालनी है, पर Z दा गेन गिवन है और जिहड़ा Z दा गेन है वो सैक्रीफाइस होएगा X और Y दे विच इक्वल। ठीक है, तो इक्वल होएगा तो 1/2 रेशो बन गई। तो जिहड़ा गेन होया उन्होंने 1/2 नाल मल्टीप्लाई करोगे 1/20 आएगा। फॉर्मूला चाहे तो डायरैक्ट याद रख लो, चाहे तो तुहानू सैक्रीफाइसिंग रेशो पता उन्होंने रीअरेंज करके भी लगा सकते हो। न्यू शेयर निकलेगा ओल्ड शेयर दे विचों सैक्रीफाइस करके, तो ओल्ड शेयर का सैक्रीफाइस कर माइनस कर दोगे तो 9/20 आएगा। इदा ही वाई का निकालना है। वाई का ओल्ड शेयर कितना? 3/10। सैक्रीफाइस निकाल लोगे 1/2 ही कर रहे हैं क्योंकि इक्वल कर रहे हैं ना, और 1/10 गेन कर रहे हैं Z। 1/10 का 1/2 करोगे, सैक्रीफाइस दोनों का सेम आएगा क्योंकि इक्वल है। इक्वल ना होंदा फिर अलग चीज़ होनी सी। हुण वाई का न्यू शेयर निकाल लोगे, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर सीगा 3/10 माइनस करोगे 1/20, इत्थे माइनस है, इत्थे माइनस है। ठीक है, आ देखो माइनस करोगे जो यदा LCM लोगे मल्टीप्लाई करोगे 5/20 आएगा। यदा मतलब की है कि वाई का न्यू शेयर कितना है 5/20। हुण Z का ओल्ड शेयर कितना सीगा? तिना की न्यू रेशो निकालनी पेगी ना सानू। हुण X की निकल गई, वाई की निकल गई, पर जो Z है वो गेन कर रहा 1 कितना कर रहा सी 10। हुण ओहदा कितने निकालोगे? ओल्ड रेशो कितनी है 2/10। हुण 1/10 वो गेन कर, बस तुसी ओहदे ओल्ड रेशो दे विच गेनिंग शेयर ऐड कर दोगे, तुहाडे कोल न्यू रेशो आ जाएगी। समझ रहे हो? हुण तुहाडे कोल आया 9:5:3, नीचे आया 20 एदा 20 एदा पर 10 एदा। हुण डिनोमीनेटर सेम नहीं है, तो ये रूल है सानू डिनोमीनेटर सेम करना पेगा। डिनोमीनेटर कितना सेम किया जाएगा? LCM लैके। यही चीज़ मैं तुहानू दस रही सी कि अगर ऑप्शनस दे विच डिनोमीनेटर सेम है तो तुहानू LCM लेना पेगा। हुण LCM लवो 20 20 और 10 का LCM लिया। 2 के टेबल ते 10 10 और 5, 2 के टेबल ते 5 5 और 1, 5 के टेबल ते 1 1 और 1। ये हो गया 2 2 4, 4 × 5 हो गया 20। 20 LCM दे विच आया। 20 नू 20 नाल किता डिवाइड आया 1, 1 नू 9 नाल मल्टीप्लाई किता आया 9। 20 नू 20 नाल किता डिवाइड आया 1, 1 नू 5 नाल मल्टीप्लाई किता आया 5। 20 नू 10 नाल डिवाइड किता आया 2, 2 नू उपर 3 नाल मल्टीप्लाई किता आया तुहाडे कोल 6। हुण न्यू रेशो आई तुहाडी 9:5:6। तो आंसर ए मन्निया जाएगा, ना कि जिहड़ी तुसी रेशोज़ निकाली हो, क्योंकि सानू डिनोमीनेटर इक्वल करना हुंदा है। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी क्लीयर है, एक बारी खुद प्रैक्टिस करना है। नैक्सट टॉपिक आंदा साडे कोल एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल। पहला आप पढ़ लिया एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैं 3 तरह के एग्जाम्पल्स करवाए हैं, और जो मैं सैक्रीफाइस और गेन वाला करवाया है, तो डायरैक्ट क्वेश्चन आया होया। हुण देखो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की चीज़ा ये याद रखनी है कि जी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल आ दसी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दसी गई है। जोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है ना, इंटेंजिबल एसेट स्पैसीफाई दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड। कहते वो दसिया गया है कि गुडविल उदों ही रिकॉर्डेड की जाएगी बुक्स के जदों वो कुछ पैसा पे किया गया। ठीक है, जो मैं गुडविल वाली क्लास करवाई सी, मैं उदों तुहानूं 2 तरह की गुडविल करवाई सी। एक करवाया सी मैं सैल्फ जनरेटेड, अगर तुहानूं याद होवे,
एक करवाया से सैल्फ जनरेटेड, एक करवाया से परचेज्ड गुडविल। तो मैं तुहानूं उत्थे स्पैशल मैंशन करवाया सीगा कि सैल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं हुंदी, परचेज्ड वाली रिकॉर्ड हुंदी है। तो यही चीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने दसी है कि अगर वो परचेज्ड गुडविल है तो ही आपां उहनूं रिकॉर्ड करांगे बुक्स दे विच, अदरवाइज अगर वो सैल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उहनूं इमीडिएट रिटन ऑफ किया जाएगा। ठीक है, हुण अगे देखते हैं। इट मीनस ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स दे विच सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल रिकॉर्ड की जाएगी। हुण है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कहते जो एडमिशन होंगी है, रिटायरमेंट होंगी है, डैथ होंगी है किसी भी पार्टनर की, उस केस दे विच जदों चेंज होंदी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो गुडविल नूं आपां रेज करते हैं। ठीक है, गुडविल नूं इमीडिएटली रेज करके आपां उसी टाइम रिटर्न ऑफ कर देंगे। पर गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जिहड़ी परचेज गुडविल नहीं है उन्होंने आपां नहीं रेज कर सकते, तो टैंपरेली एडजस्ट करने लई आपां गुडविल अकाउंट रेज करते हैं। गुडविल अकाउंट रेज करके उन्होंने इमीडिएटली रिटर्न ऑफ कर देंगे, वंड देंगे पार्टनर्स दे विच फटाफट। ये सैल्फ जनरेटेड गुडविल है, परचेज गुडविल नहीं है। बट अगर परचेज होंगी तो उन्होंने आपां परमानेंटली शो कर देंगे। यही चीज़ इत्थे लिखी हुई है। ठीक है, हुण अगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की गाइडलाइनस दे विच दस्सिया है कि दो तरह के मैथड्स है इनू एडजस्ट करन दे। पहला तो है पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट के विच एडजस्ट कर दो। दूजा है कि रेज कर दो गुडविल अकाउंट फटाफट, मतलब गुडविल रेज करना, गुडविल अकाउंट टैंपरेरी बना देना, उन्होंने आप बोल देंगे गुडविल रेज करना। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ कर दो गुडविल नूं। दस इफ गुडविल इज़ रेज्ड, जे गुडविल रेज की है तो उन्होंने उसी टाइम इमीडिएटली रिटर्न ऑफ करना जरूरी है। हुण देख लो अकाउंटिंग एंट्रीज, पहला केस है साडे कोल इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग। हुण ये ना मैनू कोई पुछो फ्लक्चुएटिंग दे विच कैपिटल अकाउंट क्यों पाया तो करंट अकाउंट क्यों नहीं पाया। पार्टनरशिप वाली क्लास दे विच मैं सारा दस्सिया होया। जे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है इहदा मतलब सारी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट दे विच होएगी, तो जे कैपिटल फिक्सड है इहदा मतलब सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट दे विच होएगी। इहदा रीजन ये है। ठीक है, हुण डिटेल दे विच करना है तो पार्टनरशिप वाली क्लास दे विच करो। उस तो बाद है एंट्री की पाओगे गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ये चीज़ याद रखना, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट पाओगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट पाओगे। जिद्दां आपां रेशियो कैलकुलेट की गेन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बस उस पार्टनर के नाम तो एंट्री पा दोगे, पर कैपिटल अकाउंट आएगा अगर तुहानूं मैंशन किया गया है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। हुण इत्थे ये समझो कि गेनिंग पार्टनर डेबिट क्यों हो रहा है। गेनिंग पार्टनर इस करके डेबिट हो रहा है क्योंकि कुछ अपना शेयर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नूं देना है तो वो कैपिटल कटेगी, इस करके इनू डेबिट किया जा रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नूं कुछ ना कुछ मिलेगा गेनिंग पार्टनर तो वो कैपिटल बढ़ेगी, इस करके इनू क्रेडिट किया जा रहा है। तो याद रखना डेबिट का मतलब कि डिक्रीज इन कैपिटल कर रहे हैं तो क्रेडिट का मतलब कि इनक्रीज इन कैपिटल कर रहे हैं। ये पिछे का ये रूल है, इस करके इनू गेन पार्टनर नूं आपां डेबिट कर रहे हैं तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नूं आपां क्रेडिट कर रहे हैं। नैक्सट देखो, अगर फिक्सड कैपिटल है एंट्री तो सेम आएगी, बस नाम बदल जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा इत्थे क्योंकि फिक्सड कैपिटल अकाउंट मेनटेन कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग का भी पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा। हुण इत्थे देखो गेनिंग पार्टनर लिखा मैं तो थोड़ा जा खुद देख लेना, इत्थे कैपिटल अकाउंट आना है। ठीक है, लिखना भूल गई होंगी फ्लो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नैक्सट चीज़ है देखो, पहला वाला टॉपिक हो गया साडा, जी पहली वाली गाइडलाइन सी कि पार्टनर्स अकाउंट के विच एडजस्ट कर दो, वो इदा एडजस्ट होगी, एंट्रीज पा के जो जो अमाउंट होएगा आप पा देवांगे। नैक्सट है साडे कोल वैन गुडविल अकाउंट इज़ रेज्ड एंड रिटन ऑफ, पर अगर गुडविल अकाउंट खोलिया गया है तो उन्होंने रिटन ऑफ करना है, तो ये भी किद्दां करोगे। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है पहली एंट्री पाओगे रेज्ड की, जो गुडविल अकाउंट बनाया गया है, रेज्ड का मतलब है गुडविल अकाउंट नूं बनाना। गुडविल अकाउंट डेबिट करोगे विद फुल अमाउंट ऑफ गुडविल दे नाल, ते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। ये चीज़ याद रखना, जदों तुसी दूजे मैथड के अकॉर्डिंग कर रहे हो, जो क्वेश्चन दे विच स्पैसीफाई करोगे किहड़ा मैथड, गुडविल अकाउंट रेज करो तो उन्होंने इमीडिएटली रिटर्न ऑफ करो, तो उत्थे तुसी ये वाली एंट्री पाओगे। ठीक है, ये वाली
ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਓਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਐਂਟਰੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਆਏਗੀ ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਐਂਟਰੀ ਪਏਗੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਦੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਜ਼ਡ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल सिर्फ अकाउंट बदलेगा, इतने पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा, इतने पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा। एंट्री सेम है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहली वाली एंट्री जो रेस्ड की एंट्री पा रहे हैं उदों आप पावांगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो च, जो आप रिटर्न ऑफ की एंट्री पा रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो च। आई होप तुहानूं ये सारी चीज़ां क्लीयर है, इनू नोट कर लेना। एंट्रीज़ दे विचों भी डायरैक्ट क्वेश्चन आता है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं गेनिंग पार्टनर ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮਤਲਬ ਉਸਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਹੁਣ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਟਰੀਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਬਿਟਿੰਗ ਓਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੋਗੇ, ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖੋਗੇ। ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੋਗੇ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਵਿਦਾਊਟ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾ 16 ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 10 ਜੋ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ICAI ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੈਟ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਬੁੱਕਸ ਓਨਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਫਟਾਫਟ ਖੋਲੋਗੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ MCQs ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ PDF ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ। ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਔਰ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ABC ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ 3:2:1। ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਕੁਅਲੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਕੁਅਲੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1:1:1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 3 ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ 1:1:1 ਆ ਜਾਏਗਾ। 4 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 4 1:1:1 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੂ ਇਜ਼ ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਓਲਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਓਲਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 और टोटल कितना है 3 2 1 और 6 हो जाएगा। न्यू शेयर कितना है 1/3। LCM लोगे तो थोड़े को आएगा 6 LCM आ जाएगा। 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ करोगे डिवाइड, 1 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ करोगे 2, 1:2 आ जाएगा। पॉजिटिव जा रहा है, ਇਹਦਾ मतलब है कि A ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਨਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ A ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, A ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। B ਦਾ ਦੇਖੋ 2/5 6 2/6 माइनस 1/3। LCM 6 आ जाएगा। 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ऊपर 2 आ जाएगा। 3 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2 आ जाएगा। 2 ਨੂੰ ऊपर 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई ਕੀਤਾ 2 आ जाएगा। 0/6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। B भी ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ B ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ C ਰਹਿ ਗਿਆ। C ਦਾ 1/6 ਹੈ, 1/6 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 1/3। LCM 6 ਆ ਜਾएगा। 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड ਕੀਤਾ 1 - 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/6।
माइनस का मतलब गेन कर रहा है, तो सी ही साडा गेनिंग पार्टनर है। ऑप्शन सी ਇਹਦਾ करैक्ट हो जाएगा, सी ओनली। आ सारी कैलकुलेशन मैं लिखी है, तुसीं एक्सप्लेनेशन दे विच चैक कर सकते हो। MCQ वाली PDF मैं ग्रुप दे विच शेयर कर दूँगी। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। सैकेंड क्वेश्चन है, इन अबव केस सैक्रीफाइजिंग रेशो विल बी। सैक्रीफाइजिंग रेशो दसनी है। देखो अबव केस दे विच सी साडा गेन कर रहा सी, सी नूं तां एलिमिनेट कर दो। बी दा नो चेंज सीगा, मतलब जीरो सीगा, बी ना सैक्रीफाइस कर रहा सी ना लॉस कर रहा सी, तां ए दी सैक्रीफाइजिंग सीगी 1, तां जिथे भी सी है उन्होंने एलिमिनेट कर दो। सी तां गया क्योंकि वो तां गेन कर रहा सी। हुण बी तां कुछ भी नहीं कर रहा सी, बी दी जीरो सी, तां ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी करैक्ट हो जाएगा 1:0। ओनली ए सैक्रीफाइस कर रहा है, बी का कोई सैक्रीफाइस नहीं है, सो रेशो हो जाएगी 1:0। उस तो बाद है वैन गुडविल इज़ एडजस्टिड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। अगर गुडविल कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जा रहा है, एंट्री दसो ओदी। तो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा गेनिंग पार्टनर डैबिट हुंदा है, गेनिंग पार्टनर डैबिट हुंदा है, तो सैक्रीफाइजिंग पार्टनर क्रेडिट होंदा है। तो ऑप्शन ए है सैक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर, ए ऑप्शन तक गया। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रीफाइजिंग, ऑप्शन बी करैक्ट है। सी भी एक बार देख लेंगे, गुडविल ये नहीं आएगी, ऑप्शन सी भी गया। ऑप्शन डी की है, ये भी चला गया, तो ऑप्शन बी करैक्ट हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रीफाइजिंग पार्टनर। नैक्सट क्वेश्चन है, इफ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। अगर गुडविल पहला तो बुक्स के विच है, बैलेंस शीट के विच है, तो जो चेंज इन रेशियो हुई है उदों गुडविल नूं किद्दां ट्रीट करोगे। रेज्ड अगेन एंड रिटर्न ऑफ न्यू रेशियो, नहीं इदां नहीं किया जाता। ये किया जाता है जो आपां दूसरा मैथड यूज़ करते हैं कि गुडविल अकाउंट रेज करो, उन्होंने रिटर्न ऑफ करो, तो जोड़ा गुडविल अकाउंट खुलेगा उन्होंने ओल्ड रेशियो च पाने, तो जोड़ा रिटर्न ऑफ करते हैं न्यू रेशियो के पाने। पर यह है कि ऑलरेडी अगर गुडविल अपेयर कर रही है, ठीक है, एडजस्टेड डायरैक्टली बिटवीन पार्टनर्स इदां भी नहीं किया जाता। रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो, तो जो मैं लास्ट टॉपिक करवाया ना रिटर्न इन ओल्ड रेशियो, तो ऑप्शन सी करैक्ट हो जाएगा। रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, गुडविल जी पहला तो बुक्स के उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया जाता ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो के, क्योंकि ये पुराने पार्टनरशिप के पीरियड की होंगी है। सिक्स्थ क्वेश्चन, गुडविल रेज एट द टाइम ऑफ रेशियो चेंज शुड बी। गुडविल जी बनाई गई है, रेज की गई है, गुडविल अकाउंट टैंपरेली खोलिया गया है, तो उस टाइम उसनों किद्दां करांगे, कैप्ट परमानेंटली नहीं। मैं तुहानूं कहा ये वाली गुडविल परमानेंटली नहीं होंदी। इमीडिएटली उन्होंने न्यू रेशियो के विच आपां डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्रेडिटेड नहीं करते, नॉट एडजस्टेड ऑल, बी ਇਹਦਾ करैक्ट हो जाएगा। इमीडिएटली आप रिटर्न ऑफ कर देंगे न्यू रेशियो के विच, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जी सैल्फ जनरेटेड गुडविल होंगी उन्होंने बुक्स के विच नहीं रखते, उन्होंने गुडविल अकाउंट रेज करके मतलब टैंपरेली गुडविल अकाउंट खोल के इमीडिएटली पार्टनर्स के विच वंड दिता जाता है। सो ये सी लास्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का। आई होप तुहानूं सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये PDF तुहानूं ग्रुप के विच मिल जाएगी। तो अज आप ख़त्म कर दिता अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक। आई होप तुहानूं क्लास वधिया लगी होए। तुसीं सिर्फ एंट्रीज याद रखनी है कि आपां किद्दां एडजस्टमेंट करनी है। देखो जिद्दां मैं हुणे तुहानूं दस्सिया आ वाले 2 मैथड तुसीं याद रखने, ये उत्ते MCQ बनते हैं कि अगर गुडविल जी है अकाउंट रेज करके बनाई गई है तो उन्होंने रिटर्न ऑफ करना है, तो वो एंट्री किद्दां आएगी, तो जी आपां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के विच करना वो किद्दां आएगी। और लास्ट केस आपां कीता सी अगर गुडविल पहला तो ही बुक्स के विच अपेयर कर रही है तो वो एंट्री किद्दां आएगी। सो आई होप तुहानूं लैक्चर वधिया लग्या होए। जे तुहानूं लैक्चर वधिया लग्या होए प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करना और वीडियो को वध तो वध शेयर और लाइक जरूर करना। ये नाल मेरा टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो फॉर रेगूलर अपडेट्स, प्लस अपना फीडबैक मैनू कमेंट सैक्शन दे विच जरूर देना। मिलांगे नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट एडजस्टमेंट्स दे नाल। सो थैंक यू सो मच।